जन की बात, द पल्स ऑफ द पीपल। Traders by and large have never faced the excise act or the services act. GST will affect my kitchen budget. आम आदमी को GST का कोई फर्क नहीं पड़ना। There is no impact of GST on the employee sector. Ladies and gentlemen, welcome to Jan Ki Baat's discussion on Are you GST ready? Is this country GST ready? क्या मैं इसको इकोनॉमिक पोखरम कह सकता हूँ? इनडायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिक कहना चाहिए था? Yes, बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये उससे बड़ा बदलाव है। उससे बड़ा बदलाव है। उससे बड़ा बदलाव है। तो मैं आपको एक और चीज पोखरन एग्जीक्यूटिव डिसीजन था। हाँ, बट GST के अंदर on the same product, the state as well as the center equivalently will get their respective share of tax revenue. Nowhere in the world this is the case, which is something which is there, and I absolutely on this point we should definitely give the credit to all you people, all the ecosystem along with the government leading. I think it. So it's a concept which is and that reflects more. I will say that this reflects the principles of the Constitution, the Constitution of India. Cooperative federalism and cooperative federalism is something which goes here, and that is where it comes into the context. And this is the major difference between other jurisdictions and India. Absolutely, I think so we have respected. And I think that is what, when sorry to interrupt you, what B.R. Ambedkar had thought about in the Constitution, that it is not completely unitary, it is not completely federal, and that is what is reflected here. Can I conclude that, madam? Can I conclude that? Absolutely. Okay. मुझे लगता है कि एमएससी सेक्टर को भी इवेंचुअली जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आने वाला है। आप देखिए जीएसटी का बड़ा लक्ष्य क्या है? जीएसटी का बड़ा लक्ष्य जो है वन नेशन वन मार्केट है, और दूसरा बड़ा लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि अब से पहले एमएसएमई को वैट टैक्स अलग देना पड़ता था, एक्साइज अलग देना पड़ता था, सर्विस टैक्स अलग देना पड़ता था, एंट्री टैक्स अलग थे, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग था। तो इतने बड़े टैक्सेस का जंजाल जो है, और उनके सबके इंस्पेक्टर्स को, उनकी जो इंस्पेक्टर राज था, अधिकारियों की जो इंटरवेंशन थी, वो सबको उसको भुगतना पड़ता था। अब उन सबको समेट कर एक ही जो है प्लेटफॉर्म सरकार ने बना दिया है। How much is the volume that GST network will basically take per day? Anything average? Trillion transactions? Trillions of transactions. Trillions of transactions. Each transaction of purchase has to be tallied matched with the transaction of corresponding sale and sale. And therefore, I agree when the chairman of the GST says that they are. But let me also tell you, they are optimists yet worried. Let me tell you, there are a lot of. That is only because it's not tasted. It's not tested. एक से मैं क्वेश्चन लेके दूंगा व्यूअर से, पर this is something we should go as a key takeaway. This should be a takeaway. Sorry to interrupt, sir. This is something which is very important. Ladies and gentlemen, there will be more than 1 trillion transactions which will take place on this GST and network. हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आगे जाके, क्योंकि अभी जो अधिकतर हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होने में हम लोग अभी बीसीडी दे रहे हैं, जिसको हम बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। उसके बाद स्पेशल एडिशनल ड्यूटी दे रहे हैं, कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी सीबीडी जो पेमेंट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम खाली बीसीडी दे रहे हैं और जीएसटी पे कर रहे हैं। अगर जीएसटी अगर आपका 18% कंप्यूटर्स में 12% का ड्यूटी है, जो कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर सस्ते होने जा रहे हैं। सॉलिड इन अगर यूनिट कंटेनर्स सोल्ड इन यूनिट कंटेनर्स आता है तो 7% तक करंट इफेक्टिव टैक्स रेट अब 18% हो गया है। नहीं, आप में पहले भी बेबी फूड में एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी आम कंज्यूमर को पता नहीं होता, वो मैन्युफैक्चर के एंड में लगता है। आप बताइए सर, बेबी फूड अगर लेने जाऊंगा मार्केट में तो क्या कितना ज्यादा पैसा देवा लीजिए? 100 रुपए का वो कंटेनर, 100 रुपए की चीज आती है कंटेनर के अंदर, तो कितना ज्यादा बढ़ सकता है पैसा? हार्डली 2-3 रुपए। बहुत बड़ा आप परसेंटेज टर्म्स में जा रहे हैं, पर आप भूल रहे हैं जो एक्साइज जो पहले हमें दे रहे थे, छुपी हुई थी एक्साइज, अब वो एक्साइज और वैट मिलके एक ही टैक्स हो
परंतु स्टेट का जो रेवेन्यू है वो कम वो बहुत बुरी नहीं तरह सर, से उसमें घटने का भी एक उनके पास प्रावधान है कि सेस लगा सकते हैं, और 28% टैक्स लगा के उसके ऊपर अगर सेस लगा देते तो हो सकता है कि प्राइस घटता भी नहीं हो। लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स उन्होंने 28% के So- स्लैब में रख के उसके ऊपर सेस लगा दिया है। तो एक मिथ चल रहा है कि नहीं पेट्रोलियम इसलिए लेके नहीं आए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। This is a myth. This is a myth. गवर्नमेंट चाहे तो उसे महंगा भी कर सकती थी जीएसटी के एम्बिट में। Absolutely. Like Jammu and Kashmir is not ratified GST, right? till date it has Not. So this is again which comes to the question, right? When we talk about Jammu and Kashmir, I believe, Tilakji, and this is my belief that It is already written in the constitution under Article 370 Sure. that J&K will have its own law. But agreed, but JNK is an integral part of India, Alokji, and if the JNK is an integral part of India, we have to move out of that psychology of Article 370, where you can, till the time we do not do so, how can the rest of the country be treated differently and JNK be treated differently always? I disagree with जम्मू that. कश्मीर अगर इस जीएसटी के जो चाहते ही नहीं है अगर दिल्ली। नहीं चाहेंगे तो मुझको लगता है कि उसमें जम्मू कश्मीर स्टेट का नुकसान होगा। पर अंततः जो है जम्मू कश्मीर सरकार को इस इंटीग्रेशन में शामिल होना। परंतु क्या ये एक स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी पॉपुलेशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं? आपको अलग नंबर चाहिए रहता है कश्मीर जाने के लिए। दिस इज माई बिलीव दैट वी हैव टू गो अवे फ्रॉम आर्टिकल 370। स्ट्रेटेजी होती तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट में 10 लाख में जेएन को कोई स्टेट को नहीं रखते कि जो लोग कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं या कंप्लीटली एक्सेप्टेड सप्लाईज में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं है। अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूरल इकोनॉमी। देयर इज नो जीएसटी ऑन एग्रीकल्चरिस्ट। इतनी बड़ी जो संख्या, इतनी बड़ी लेबर फोर्स है, वो कंप्लायंस कर पाएगी जीएसटी के नॉर्म्स से? ये एक पहला प्रश्न है जिसपे आप प्रकाश डालें। ट्रांजेक्शन कॉस्ट न बढ़े, इस बात का हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो ये एक तो ना बढ़े और बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन भी ना हो। चलेगा। अगर आपका व्यापार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो कंपोजिशन स्कीम के भी आप बाहर हैं, और तब आप जीएसटी के अंदर आपको आना जरूरी ही है, क्योंकि जीएसटी का लॉजिक ये सीमलेस फ्लो होना चाहिए, तब तो जीएसटी लगेगा ही। आई थिंक दैट्स द प्रिंसिपल। I will take that question. इस क्वेश्चन पे कुछ कहना चाहूंगा। Millions of invoices will be uploaded on उसमें प्रॉब्लम आ सकती है आलोक जी। नहीं, इनवॉइस का मेन ही तो डेटा जो आएगी ये टेस्टेड डेटा नहीं है। आज की दुनिया में इतना बड़ा डेटा प्रोसेस करने के लिए कहीं भी टेस्टिंग नहीं हुई है। और इतना बड़ा डेटा अगर हम सक्सेसफुली इसको जो हिसाब से जीएसटी का कंसेप्ट है उसके हिसाब से अगर हम प्रोसेस कर पाते हैं तो हमें जीएसटी में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। जीएसटी का गलत उपयोग कर इन्फ्लेशन न बढ़े, सबसे बड़ा क्योंकि तभी उन्हें एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज भी लगाया होगा, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा सोच कर लगाया। और अगर शुरू में नहीं था ये सरकार जो है इसको सक्सेसफुली मैनेज कर लेती है। जब आपने ओपनिंग रिमार्क्स की बात कही तो मेरा एक ओपनिंग रिमार्क देना चाह रहा हूं। जरूर। तो मेरा रिमार्क्स ये है कि आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड ओके एंड प्रिविलेज पर्सन ओके दैट वन डे टू माय ग्रैंड चिल्ड्रन ओके आई विल से कि भाई ये जो जीएसटी लागू हुआ था ना मेरे जमाने में लागू हुआ था।